اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. چلو صحیح 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 رہنے دو صدر رہنے دو. محمد وعلى محمد. بدتر نہیں ہوگا. بہت عمدہ. جیو بیٹا. محمد وعلى محمد. کیا کہنے بھائی. ارے کیا پڑھ دیا آپ نے. واہ 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 واہ. کربلا اس لیے آیا نہیں مکہ یزید. کربلا اس لیے آیا نہیں مکہ یزید. اس کو عباس نے ارے کیا پڑھ دیا. واہ 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 واہ. ارے واہ واہ. محمد وعلى محمد. بی بی سکینہ امام حسین کی سب سے پیاری بیٹی تھی. امام کہتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر رہنے قابل نہیں. حضرت عباس کی بی بی سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے. وہ اپنے بابا حسین کے سینے پہ سو جاتی تھی. جس طرح مولا عباس کو امام علی نے مانگا تھا ویسے ہی طرح بی بی سکینہ کو امام حسین نے بھی مانگا تھا دعا میں. مگر افسوس کہ کربلا میں معصوم سکینہ پر ظلم بے انتہا ہو گئے. اور ایک رات شام میں بی بی خاموش ہو گیا. راتوں کو بابا کو رونے والی سکینہ خاموش ہو گیا. ماں روتی ہے صلی اللہ محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. صدا عباس جب ہم دیتی ہے جری ہے. صدا عباس جب ہم دیتی ہے جسے عباس کہتا ہے زمانہ. جسے عباس کہتا ہے زمانہ. لبے زینب کی مناد علی. بہت عمدہ. بہت عمدہ. بہت عمدہ. زمانہ لبے زینب کی مناد علی ہے. وہ آیا رن میں ننا شیر ہے. وہ آیا رن میں ننا شیر ہے. خدا کے دین کی وہ زندگی ہے. خدا کے دین کی وہ زندگی ہے. جدیدی مرحبوں سے جا کے کہہ دو مرحبوں سے جا کے کہہ دو یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے. بہت اچھا شعر ہے. واہ واہ واہ. بہت عمدہ. یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے. واہ 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 واہ. مرحبوں سے جا کے یہ مرحبوں سے کہہ. واہ 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 واہ. ارے کیا کہنے بھائی. یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے. بہت اچھا شعر ہے بھائی. واہ بھائی کیا انداز ہے بھائی. جدیدی مرحبوں سے جا کے یہ کہہ دو. جدیدی مرحبوں سے جا کے یہ کہہ دو یہ اصغر بعد میں پہلے علی. محمد وعلى محمد. بہت اچھے بیٹا. خوش رہو. ماشاء اللہ بھائی. ماشاء اللہ بھائی. واہ 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 واہ. صلی اللہ محمد. محمد وعلى محمد. جی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے. تیری نسبت سے یہ نام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیری عشق میں کافر مجھ کو. اللہ
मुझको तेरा नाम भला लगता है। जोर से। तेरी निस्बत से जिस नाम भला लगता है लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफी भला लगता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे दिल को ये इंसान भला लगता है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। मोहम्मद मन दिले दानिश कुशा सीधे देखो हाँ। मोहे को संगे दिली। दिली बहरे खुदा ला फता दरशाने दू फरमूदा बाब शहरे इब्न खाना या मोहम्मद मुस्तफा। जो भी मसरूफ सलामे शहदा रहता है, जो भी मसरूफ सलामे शहदा रहता है, वो तो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है, वो तो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है, जो भी मसरूफ सलामे शहदा रहता है। अरे शिम्र कहता था यही माँ है अली अकबर की, शिम्र कहता था यही माँ है अली अकबर की, जिसका एक हाथ कले हाय 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 धरा रहता है वाह पे धरा हाँ, हाँ, हाँ। रहता है, जिसका एक हाथ कलेजे पे धरा रहता है, जो शिम्र कहता था यही माँ है अली अकबर की, शिम्र कहता था यही माँ है अली अकबर की, जिसका एक हाथ कलेजे पे धरा रहता है, जो भी मसरूफ सलामे शहदा रहता है, ये शर्मिंदगी पानी के ना पहुँचाने की, है ये शर्मिंदगी पानी के ना पहुँचाने की, मैं पे भी सरिया हाय हाय जो भी मसरूफ सलामे शहदा रहता
ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سرے شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہے پر سرے شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہے جو بھی مصروف سلام شہدار روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہے، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف ہے وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بیوار بچوں کا پھٹا رہتا ہے، کرتا بیوار سی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلامی شہداء شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک کلیجے پہ چڑھا رہتا ہے، جس کا ایک محمد وعلی محمد۔ اپنے بچوں کو مجلس میں ساتھ لاتے رہو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کیا کہنے سکھانا بچوں کو کرنا یہ مجالس و ماتم، سکھانا بچوں کو کرنا یہ مجالس و ماتم، دلوں میں ان کے بس آپ یوں کربلا کا غم، عزا کی فکر کو یہ دل سے ہر گھڑی ہوگی، یقین ہے خلد میں اعلیٰ جگہ ملی ہے، بنانا بچوں کو پیغام کربلا کیا ہے، بتانا بچوں کو پیغام کربلا کیا ہے، بدلتے موسم و حالات سے نہ گھبرانا، نماز چھوڑ کے وہ دو ماتم کی پھر جزا کیا ہے، نماز چھوڑ دو ماتم کی پھر جزا کیا ہے،
وہ چاہے خطرہ مجالس میں لازمی جانا، اذا کے ساتھ ہمیشہ نماز بھی ہوگی، اذا کے ساتھ نماز بھی ہمیشہ نماز بھی ہوگی. علی کے ہاتھ میں پھر تیری ضامنی ہوگی. کیا کہنے بھیا. اذا کے ساتھ ہمیشہ بے نماز شک بھی بے ہوگی. شک بے شک. علی کے ہاتھ میں پھر تیری ضامنی ہوگی. ہاں والدین نے یوں پرورش کر دی، ہاں والدین نے میرے یوں پرورش کر دی، لہو میں تیرے عزاداری اس طرح تھی. یہ بات کہتے ہوئے اب مجھے خوشی ہوگی، میں نمازی بھی ہوں ماتمی بھی ہوں. میں نمازی بھی ہوں ماتمی بھی ہوں. مجھ کو ماں نے سکھایا ہے ماتم، باپ نے نواح خوانی سکھائی. پرسداری ہے میرے لہو میں، میرے دل میں ہے زینب. محمد و آل محمد. قید عابد بیمار، کیا قیامت ہے. قید عابد بیمار، کیا قیامت ہے. نہیں ہے کوئی مددگار، کیا قیامت ہے. قید عابد بیمار، کیا قیامت ہے. دست پاؤ مبارک بھری ہے زنجیریں، اور اس پہ یہ تو کہ گریبان، کیا قیامت ہے. نہیں ہے کوئی مددگار، کیا قیامت ہے. وہ توق ایسا کہ گردن سے خون بہتا ہے. وہ توق ایسا کہ گردن سے خون بہتا ہے، اور اس پہ کوڑوں بوچھار، کیا قیامت ہے. اور اس پہ کوڑوں کی بوچھار، کیا قیامت ہے. پڑے ہیں لاش عزیزوں کے گرم ریتی پر، پڑے ہیں لاش عزیزوں کے گرم ریتی پر. ہے قید وارث غمخوار، کیا قیامت ہے. نہیں ہے کوئی مددگار، کیا قیامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صدر آگے پڑھے سیدی بات پڑھے. تو ماحول ایسا بن گیا ہے کہ نہیں کوئی مرثیہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے. چار سے شعر گاتا ہوں. ردیف ہے بار بار. ہم یہاں کرتے رہیں گے ذکر حیدر بار بار. ہم یہاں کرتے رہیں گے ذکر حیدر بار بار. ہم یہاں کرتے رہیں گے ذکر حیدر بار بار.
حشر میں وہ ہم کو دیں گے جام کوثر بار بار، حشر میں وہ ہم کو دیں گے جام کوثر بار بار، اور دشمنوں کے سر پہ گرتی جب چمک کر بار بار، کیا کہنے بھائی؟ دشمنوں کے سر پہ گرتی جب چمک کر بار بار، سجدے کرتی تھی زمین پہ تیغ حیدر بار بار، سجدے کرتی تھی زمین پہ تیغ حیدر بار بار، جا رہے تھے فتح کو جو قلب حیدر بار بار، جنگ خندق جنگ خیبر، جا رہے تھے فتح کو جو قبل حیدر بار بار، چھو کے آ جاتے نظر سے باب خیبر بار بار، چھو کے آ جاتے نظر سے باب خیبر بار بار، جو جا رہے تھے فتح کو جو قبل حیدر بار بار، چھو کے آ جاتے نظر سے باب خیبر بار بار، اور ذکر شہ میں فکر نو دیتے ہیں مجھ کو جبرائیل، ذکر شہ میں فکر نو دیتے ہیں مجھ کو جبرائیل، غیب سے آتے ہیں مضمون اور میسر بار بار۔ یہ شعر دیکھیے گا بھائی توجہ، کہ کھا کے ٹھوکر یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ، کھا کے ٹھوکر یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ، جانتے ہیں جب تو ہم کھاتے ہیں ٹھوکر بار بار، یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ کھا کے ٹھوکر یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ، جانتے ہیں جب تو ہم کھاتے ہیں ٹھوکر بار بار۔ ماشاء اللہ بھائی، واہ بابا جی بلند مدح لکھنے بیٹھتا ہوں ضربت حیدر کی جب، مدح لکھنے بیٹھتا ہوں ضربت حیدر کی جب، آتے ہیں تیرے قلم جبریل کے پر بار بار، آتے ہیں تیرے قلم جبریل کے پر بار بار، جز علی گھر میں خدا کے کب کوئی پیدا ہوا، جز علی گھر میں خدا کے کب کوئی پیدا ہوا، کب بھلا دیوار کعبہ میں کھلا در بار بار، کب بھلا دیوار کعبہ میں کھلا در بار بار۔ اور شعر لگا ہو کہ ان سے مرحب کو ڈراتی رہتی تھی بچپن سے ماں، ان سے مرحب کو ڈراتی رہتی تھی بچپن سے ماں، یاد کرواتی تھی ان کو نام حیدر بار بار، یاد کرواتی تھی اس کو نام حیدر بار بار۔ دو خطابند شعر ہیں، فاطمہ تشریف لائیں پھر حسن اور پھر حسین، محمد والے محمد، فاطمہ تشریف لائیں پھر حسن اور پھر حسین، آ رہی تھی دہر میں، آ رہی تھی دہر میں تفسیر کوثر بار بار، آ رہی تھی دہر میں تفسیر کوثر بار بار، پھر نہ سمجھے کیوں مسلمان حق نے جو قرآن میں، پھر نہ سمجھے کیوں مسلمان حق نے جو قرآن میں کی تھی واضح عظمت آل پیغمبر بار بار، کی تھی واضح عظمت آل پیغمبر بار بار، اور ایک ٹھوکر کھا کے جو بھی گھٹ شعر دیکھیے کہ جس طرح ایک رات میں حلقہ مقدر بن گیا، جس طرح ایک رات میں حلقہ مقدر بن گیا، یوں کہاں بنتا ہے انسان کا مقدر بار بار، یوں کہاں بنتا ہے انسان کا مقدر بار بار۔ تاریخ کی روشنی میں شعر دیکھیے گا کہ پہلے کافر پھر مسلمان پھر یزیدی ہو گئے، پہلے کافر پھر مسلمان پھر یزیدی ہو گئے، اور یوں بھی تو بنتا بگڑتا ہے مقدر بار بار، یوں بھی تو بنتا بگڑتا ہے مقدر بار بار۔ دیکھ کر عباس رن میں قاسم و اکبر کی جنگ، دیکھ کر عباس رن میں قاسم و اکبر کی جنگ، داد دیتے دم بدم پیہم مقرر بار بار، داد دیتے دم بدم پیہم مقرر بار بار۔ دیکھ کر عباس رن میں قاسم و اکبر کی جنگ، داد دیتے دم بدم پیہم مقرر بار بار۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، کیا عجب حیدر کے
तेवर देख के, क्या अजब असगर नबी हैदर के तेवर देख के आके झूले तक पलट जाता हो अजदर बार बार, आके झूले तक पलट जाता हो अजदर बार बार, वाह 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 वाह। वो तो असगर की हंसी पे रो दिए थे संग दिल, वो तो असगर की हंसी पर रो दिए थे संग दिल, वरना यूं पिघला नहीं करते हैं पत्थर बार बार, बहुत उम्दा, वाह वाह वरना वाह। यूं पिघला नहीं करते हैं पत्थर बार बहुत उम्दा, बार। बहुत तो शेर मसाइब के इत्मीनान से माँ समझती थी कि रन में जाने के लिए बेताब है, माँ समझती रन में जाने के लिए बेताब है, जब हुमकने लगते गहवारे में असगर बार बार बार, बार, वाह वाह वाह। कि माँ समझती रन में जाने के लिए बेताब है, जब हुमकने लगते गहवारे में असगर बार बार, और खाली झूले में भी असगर माँ गवाते थे नजर, खाली झूले में भी असगर माँ गवाते थे नजर। एक कयामत टूटती थी माँ के दिल पर बार बार, एक कयामत टूटती थी माँ के दिल पे बार बार। और आखिरी शेर भी कहती थी फिजा इलाही खैर हो अब्बास की, कहती थी फिजा इलाही खैर हो अब्बास की, आज गिरती है सरे ज़ैनब से चादर बार बार, आज गिरती है सरे ज़ैनब से चादर बार बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शाहे वाला के जो गमख़ार नजर आते हैं, शाहे वाला के जो गमख़ार माशाअल्लाह नजर आते हैं, शाहे वाला के जो गमख़ार नजर आते हैं, किस कदर साहिब किरदार नजर आता है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई माशाअल्लाह। किस तरह साहिब किरदार नजर आते हैं। किरदार, वाह, 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 वाह। अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। बहुत खूब किरदार नजर आते हैं, बहुत उम्दा। सलामत वो हो जो जाए। चलते हैं जुलूसों में अलम को लेकर, कहना वो जो चलते हैं जुलूसों में अलम को लेकर, सारे गाजी के परस्तार नजर आते हैं, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। वाह, 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 सारे गाजी के परस्तार नजर आते हैं। बेशक बेशक माशाअल्लाह भाई, वाह वाह वाह, वाह। वाह, 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 वाह। बेशक बहुत उम्दा। नजर आते हैं गाजी के परस्तार, वाह वाह वाह। कि उनके रोज़े को तसव्वुर में बसाया जब से, उनके रोज़े को तसव्वुर में उनके रोज़े को तसव्वुर में बसाया जब से, मुझको मौला मेरे हर बार नजर आते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला मेरे हर बार नजर आते हैं। नजर आते हैं। वाह, 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 वाह। वाह, 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 वाह। के गौर से बाजुए अब्बास को देखो तो सही, गौर से बाजुए अब्बास को देखो तो सही, कश्तिए दीन के ये पटवार पतवार नजर आते हैं। कैसे पढ़ो भाई, कैसे पढ़ो? गौर से वाह, 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 कश्तिए दी के, वाह, 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 वाह। अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। तो सही, वाह, 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 वाह। कश्तिए दी के ये नजर आते हैं। वाह, पटवार वाह, 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 वाह। कश्तिए दी के पटवार, वाह, वाह, वाह। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा भाई, वाह, 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 वाह। जिंदाबाद। देख के हजरत अब्बास को कहते थे लई, देख के हज़रत अब्बास को कहते देख हैं। के हजरत अब्बास को कहते
तैयार सारे तैयार वाह 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 अरे वाह अरे वाह वाह बहुत अच्छा जाफर तैयार नजर आते हैं वाह 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 फिर से बड़ो अरे शाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या शेर है वाह 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 बहुत अच्छा शेर है भाई बहुत अच्छा शेर है थे नहीं बहु बहु जाफर वाह 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 क्या कहना फिर से पढ़ो भाई फिर से पढ़ो एक बार माशाल्लाह बहुत अच्छा शेर है फिर से पढ़ो एक बार भाई देख कर हजरत अब्बास को कहते थे लई बहू जाफर वाह 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 बहुत उम्दा वाह 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 माशाल्लाह। कितने बेनूर हुआ करते हैं उनके चेहरे वाह 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 कितने बेनूर हुआ करते उनके कितने चेहरे बेनूर हुआ करते हैं उनके चेहरे बुग़्ज़ हैदर हाय हाय ईमान नजर आते हैं क्या कहना बहुत उम्दा वाह 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 बहुत अच्छा है भाई बहुत अच्छा शेर है हैदरी यारी हैदर में जो बीमार नजर आते हैं वाह 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 कितनी मकबूल हुई फातिमा ज़हरा की दुआ कितनी मकबूल हुई फातिमा ज़हरा की दुआ हर जगह शाह के अंसार नजर आते हैं वाह 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 क्या कहना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 जिंदाबाद भाई जिंदाबाद वाह 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 मोहम्मद रुखे न दे कहते थे आबिद बीमार मुझे रोने दो आबिद बीमार मुझे कहते थे आबिद बीमार मुझे रोने दो मैं हूँ बेकस का आज़ादार मुझे रोने दो मैं हूँ बेकस का आज़ादार मुझे हाय, 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 हाय। रोने दो ज़ालिमों ज़ब्ते फुगन से मेरा दम घुटता है ज़ालिमों ज़ब्ते फुगन से मेरा दम घुटता है मेरा कोई नहीं गमख़ार मुझे रोने दो कहते थे आज शब्बीर का कोई नहीं रोने वाला शब्बीर का कोई नहीं रोने वाला आज शब्बीर का कोई नहीं रोने वाला बेकसी कहती है हर बार मुझे रोने दो कहते थे आबिद एक जिसका कोई मरता है तो वो रोता है जिसका कोई एक जिसका कोई मरता है तो वो रोता है मेरा सब लुट गया घर बार मुझे रोने दो शादी छोड़ गए हैं मुझे रोने के लिए हाय हाय शादी छोड़ गए
Dum. Bismillah. Insyaallah kita akan berada di anak. Waktu yang mana? कुछ नहीं हुआ अभी पूछ रही है जब दुख्तर शैबान हुए नाचा से बिछड़ी जब दुख्तर शैबान हुए नाचा से बिछड़ी जिंदा में महंगा बीमार से बिछड़ी माँ कहती है मैं दिल पुकार से बिछड़ी लो बीवियाँ मासूम भी नादार से बिछड़ी लो बीवियों मासूम भी नादार से लगते जिगर कुश्ताए शमशीर सकीना अरे उठो तो मना दूसरे शबीर सकीना जब दुख्तर शैबान हुए से बिछड़ी सब अश्कों से मुंह धोते हैं सपने गई उठो सामाने अज़ा होते हैं सपने गई उठो और जहाँ अपनी हराम होते हैं सपने गई उठो सज्जाद हज़ीर रोते हैं सपने गई उठो अरे हैरान हूँ मैं भाई का धम बढ़ती थी तुमको अरे सज्जाद के रोने से मुहा करती थी तुम तो सज्जाद के रोने से मुहा करती थी तुम तो जब दुख्तर शैबान हुए नादार से बिछड़ी याद आता है बीवी के गमो रंज का सहना कानों से कभी खून कभी अश्कों का वो बहना अर्श से मेरा सर खून का अहवाल न कहना अब बीवी मेरे आज़ाद की खबर भेजते रहना बीवी मेरे आज़ाद की खबर भेजते रहना अम्मा की जुदाई कला गम खाई ओ बीवी जो फेल के मार जाए से बहलाई ओ बीवी अम्मा की जुदाई का नगम खाई ओ बीवी हर जी खेल के मार जाए से बहलाई ओ बीवी जब दुख्तर शैबान
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قاسم رضوی ابن احمد رضوی جبشی بانو بنت سید زبیرہ بانو بنت یوسف حسین حسن رضوی ابن حسن رضوی اللہ یا صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على رحمة الله وغاسل شكوكهم وملكهم وزارتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتخبين المنتظرين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يوم ندعو كل ناس بإمامهم صلوات سورہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی آیت جس میں خدا نے عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل لوگ یوم ندعو، یوم کا مطلب ایک دن، ندعو کا مطلب ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا کل ناس، ہر امت کے ہر ایک فرد کو بے امام ہے، اس کے امام کے ساتھ، یعنی کہ جو یوم ہے یہاں پہ یوم سے مراد جو ہے وہ روز قیامت ہے۔ قیامت کے دن ندا دی جائے گی اور ہر ایک امت کو اس کے امام کے ساتھ جڑایا جائے گا۔ اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس کی حالت کی موت ہے۔ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس کی حالت کی موت ہے۔ دیکھیے کچھ لفظ ایسے ہیں کہ دل میں جو ہے وہ سننے میں تو بدائی دیں جیسے لگتے ہیں لیکن ان کا مطلب بہت الگ الگ ہوتا ہے، ان کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے مودت۔ سننے میں تو بدائی دیں جیسے لگ رہے ہیں لیکن معنوی طور پہ اس میں بہت فرق ہے۔ اس کو ہمارے علماء نے ایسے بیان کیا ہے کہ اگر مان لیجیے کہ دو بھائیوں میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا اور دشمنی اس حد تک پڑ گئی کہ الگ ہونے کا ٹائم آ گیا، تو کوئی تیسرا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ دونوں سے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ دونوں سے مودت کرتے ہیں۔ مودت ایک ہی سے ہو سکتی ہے، محبت تو دو سے ہو سکتی ہے لیکن مودت جو ہے وہ صرف ایک ہی سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنا اجر رسالت جو ہے وہ مودت مانگا ہے، مودت فی القربہ، میری مودت اختیار کرو، محبت نہیں مانا ہے۔ یعنی کہ آپ دو طرف نہیں ہو سکتے کہ آپ ان کی طرف بھی ہو جائیں اور ان کی طرف بھی ہو جائیں، آپ کو ایک ہی طرف رہنا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ اور ہے خلافت اور ایک ہے مخالفت۔ اور لوگوں پر جو ہے وہ ثقافت کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ وہ مخالفت کو بھی جو ہے وہ خلافت کہنے لگے کہ دیکھیے وہ ہماری خلافت کر رہے ہیں۔ ارے بھیا خلافت آپ کا بیٹا کرے گا، جو دشمن ہے وہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ لفظ میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے یہ جہالت اور جاہلیت، اس میں بہت فرق ہے۔ جاہلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ معلوم نہ ہو، اور جہالت کا مطلب ہوتا ہے جو گمراہ ہو۔ اس میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا، یعنی کہ گمراہی کی موت مرا، اور جو گمراہی کی موت مرے اس کے لیے کہیں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک 100 سال کی زندگی پانے کے لیے 100 سال کا جینا ضروری نہیں ہے۔ 100 سال کا بڈھا، 80 سال کا بڈھا یا 90 سال کا بڈھا مر جائے اور وہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو زندگی اور حیات کیا رہے گی؟
कुछ नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गई। 80 साल का बूढ़ा मर गया लेकिन जिंदगी कुछ नहीं रह गई। और हमने देखा करबला में 6 महीने का बच्चा जो है वो दूसरे इमाम पर एक तरफ 80 साल का बूढ़ा, एक तरफ 80 साल का बूढ़ा और एक तरफ 6 महीने का बच्चा। ये बताइए तो इमाम की नुसरत जो है, मारिफत इमाम उसी को है जो मारिफत इमाम रखता है। देखिए करबला को अक्सर जो है वो हम लोग मसाइल में देखते हैं। देखिएगा आप करबला को सही से देखिए तो उसमें बहुत सारे आपको फजाइल के गोशे दिखाएंगे, बहुत सारे फजाइल के गोशे दिखाएंगे। देखिए वक्त असर की जो नमाज इमाम हुसैन ने जो पढ़ी है, ठीक है, वक्त असर की जो नमाज पे इमाम हुसैन ने पढ़ी है तो उसमें 2 लोगों को इमाम हुसैन ने मुकर्रर किया। 2 लोगों को, कौन 2 लोग थे? एक सईद, एक ज़ुहैर इब्न खैर, 2 लोगों को। और क्या कहा था इमाम ने कि जब तक हमारी नमाज तमाम ना हो जाए तब तक तुम तीनों को रोकते रहना, तब तक तुम तीनों को रोकते रहना। देखिए सब यहाँ से लेकर वहाँ तक बिछी हुई थी। और सईद और ज़ुहैर जो है, अगर एक मतलब उसूली तौर पर एक हम सवाल करें कि अगर सब बिछी है वहाँ से लेकर वहाँ तक, तो सईद और ज़ुहैर जो है वो लाजमी एक सवाल कर सकते थे कि इमाम ये बताइए कि यहाँ से लेकर वहाँ तक सब बिछी है और हज़ार की उधर से चल रहे हैं कि हम 2 लोग इसको कैसे रोकेंगे, 2 लोग इसको कैसे रोकेंगे। या दूसरा सवाल ये कर सकते थे कि मौला उधर से इतने तीर आ रहे हैं, 10 मिनट में हम शहीद हो जाएंगे, तो कम से कम 2 लोग और मुकर्रर कर दिए जो हमारे शहीद होने के बाद वो खड़े हो जाए, ये भी कर सकते थे। तीसरा सवाल एक और था, वो भी कर सकते थे कि मौला हम तो शहीद हो जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन हमारी नमाज का क्या होगा। ये सवाल जायज़ है कि नहीं है, ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मारिफत इमाम रखते थे, वो ये जानते थे कि अगर हमारे बस में ये काम ना होता तो इमाम हमें इसका हुक्म ही ना देते। वो जानते थे कि अगर हमारे बस में, और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। तो वो जानते थे कि ये मारिफत इमाम है कि जब तक इमाम हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हो जाएगी तब तक मलकुल मौत में भी हिम्मत नहीं है कि हमारी रूह को कब्ज़ कर ले। देखिए उसमें कई चीजें हमारे और आपके 8वें इमाम, हमारे और आपके इमाम जो है वो मामून रशीद के दरबार में बैठे हैं। वहाँ पे एक फैसला चला है कि अक्ल क्या होती है, अक्ल क्या होती है। देखिए जब जनाब आदम जो है वो ज़मीन पे आए तो अल्लाह ने जनाब जिब्रील के साथ 3 चीज़ें की, अब हया दीन, अक्ल हया और दीन। और जनाब आदम से ये कहा था कि आप इसमें से कोई एक चीज़ रख लीजिए और 2 चीज़ें वापस रखिए। अगर आप अक्ल रखेंगे तो हम हया और दीन को वापस ले जाएंगे, अगर आप दीन रखेंगे तो हम अक्ल और हया को वापस ले जाएंगे, और अगर आप हया रखेंगे तो हम दीन और अक्ल को वापस ले जाएंगे। तो जनाब आदम ने अक्ल का जो है वो इस्तेमाल किया और कहा कि मैं अक्ल रखूँगा, और बाकी चीज़ें जो है वो 2 चीज़ें जनाब जिब्रील जो है वो वापस लेके चले गए। अब 8वें इमाम हमारे मामून रशीद के दरबार में बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक गुफ्तगू, एक बहस हो रही है कि अक्ल क्या है, अक्ल क्या होती है, अक्ल क्या होती है। तो उसमें किसी ने कहा कि अगर ये तिजारत है, अगर अक्ल का इस्तेमाल किया जाए तो तिजारत बहुत अच्छी हो सकती है। किसी ने कहा कि अगर अक्ल का इस्तेमाल किया जाए हिम्मत को समझाया जा सकता है। मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो उसको बयान किया। किसी ने एक बुढ़ा खड़ा हुआ, उसने कहा कि अक्ल वो है जिससे हम अच्छे और बुरे में तमीज़ को पैदा कर सकें, अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा कर सकें। फिर मामून रशीद ने 8वें इमाम की तरफ देखा कि बताइए आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। देखिए जब इजमा हो गया कि अक्ल जो है वो अच्छे और बुरे में तमीज़ पैदा करने वाली चीज़ है, तो ये हमारे 8वें इमाम से क्यों पूछा जा रहा है। जब 10 लोग अक्ल की तारीफ बयान कर चुके, जब 10 लोग अक्ल की डिफिनेशन को बयान कर चुके, तो अब ये हमारे 8वें इमाम से पूछने का सबब क्या है। पूछने का सबब ये बता रहा है कि 10 लोगों का इजमा एक तरफ है, हमारे इमाम एक तरफ है, पूछना ये बता रहा है। तो हमारे इमाम ने जवाब दिया कि अक्ल उसे कहते हैं कि जिस 2 खराब चीज़ों में एक अच्छी चीज़ को आप पहचान सकें, और 2 अच्छी चीज़ों में कौन सी बेहतर चीज़ है उसको पहचान सकें। और ये कहे कि इमाम ने अपने गुलाम का हाथ पकड़ा और दरबार से बाहर आ गए और अपने गुलाम से कहा कि जो मैंने अक्ल की डिफिनेशन या जो अक्ल की तारीफ मैंने अंदर बयान करी है वो सिर्फ उनके लिए है। अक्ल की जो है वो तारीफ ये है कि जिसको मारिफत इमाम होता है वही अक्ल रखता है। हमारे पास नाम लगाया जाता है कि देखिए मेंबर में बैठ के अली 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 करते हैं और अली के मामले में गुलू कर देते हैं, अली के मामले में ये कर देते हैं, और अली के मामले में वो कर देते हैं। और लोगों को अपने मामले में जो है वो गुलू नज़र नहीं आता है, लेकिन हमारे इमाम के मामले में जो है वो गुलू नज़र आ जाता है। गुलू किसे कहते हैं? गुलू कहते हैं इसलिए कि हम छोटे से जाकिर है, जाकिर भी नहीं है, हमें फर्श अदा पर बैठने की तमीज़ नहीं है, लेकिन हम अपने नाम के आगे अल्लामा लगा रहे हैं, अपने नाम के आगे अल्लामा लगा रहे हैं। ये है गुलू।
اس کو کہتے ہیں ولی. ٹھیک ہے, کوئی ایک سرکاری بابو ہے, ہمارا کوئی کام ہے, ہم ان کے پیچھے لگے صاحب 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 اے بابو, ہم اس کو صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ہے ولی. تو لوگوں کو اپنے معاملے میں غلو نظر نہیں آتا ہے, سارا غلو جو ہے وہ اہل بیت کے معاملے میں نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو غلو کا جو لفظ ہے یہ پہلے ہی جو ہے خالی اہل بیت کے لیے, باقی کسی کے لیے غلو نہیں ہے, خالی اہل بیت کے لیے غلو ہے. علی نے جو ہے وہ ان سے راضی ہو گئے, اور علی ان سے راضی ہو گئے, اور 6 مہینے کے بعد ان سے راضی ہو گئے, اور 8 مہینے کے بعد ان سے راضی ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں بھیا 6 مہینے کے بعد راضی ہوئے یا 8 مہینے کے بعد راضی ہوئے, جب سب نے بیعت کر لی تھی, سب نے اجماع کر لیا تھا, تو ایک ہمارا علی بیعت کرے یا نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بتائیے. جب سب نے بیعت کر لی تو ایک ہمارا علی بیعت کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ صحیح سکتا کی جو 6 کتابیں ہیں اس میں آپ صوائف مورخہ ایک ایسی کتاب ہے جو مطلب اگر ٹاپ 5 کتابیں لی جائیں جو خلافت شیعہ پہ لکھی گئی ہیں اس میں ایک کتاب ہے صوائف مورخہ, المرتضیٰ, ترمذی شریف, صحیح بخاری, صحیح مسلم. ان ساری کتابوں میں سارا زور قلم کسی بات پہ خرچ کیا گیا کہ علی ان سے بھی راضی, علی ان سے بھی راضی, اور علی ان سے بھی راضی. اس کے علاوہ اور کوئی زور نہیں دیا گیا, علی ان سے بھی راضی, ان سے بھی راضی, اور ان سے بھی راضی. لیکن مسئلہ کیا ہے, ایک سوال پڑھیے تو آپ لوگ تیسرے دور میں ایک صحابی تھے جو بصرہ میں رہتے, فصاحت و بلاغت میں ان کا بہت نام تھا, فصاحت و بلاغت میں. اور وہیں مدینے میں آ کے رہتا تھا جو سیکریفائس اس کو اپنے مندر رہتا تھا. لیکن فصاحت و بلاغت میں جو ہے وہ بھی بہت ماہر تھا. تو وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا تھا کہ جو فصاحت و بلاغت میں یا مناظرے میں یا بحث کرنے میں جو ہے وہ جانے جاتے ہیں. اس کو کہیں سے خبر ملی کہ وہ جو ہے وہ بصرے میں ایک صاحب رہتے ہیں, ایک صحابی ہیں مولا کائنات کے, ان کو جو ہے فصاحت و بلاغت میں ماہرات ان سے جا کے بحث کرو. اب کہاں مدینہ اور کہاں بصرہ رکھا ہے, اس کے پچھتا جو ہے وہ وہاں پہنچا. اس شخص کا جو نام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے وہ ابو دجانہ لکھا ہوا ہے جو بصرے میں رہتے ہیں. ان کا نام غالباً مجھے یاد نہیں ہے, نام سنا تھا لیکن مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ وہاں گئے مناظرے کے لیے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے جو ہے یہ بحث کرنا چاہتے ہیں, یہ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو جو بصرے میں جو صاحب رہتے تھے ابو دجانہ, انہوں نے سوچا کہ یہ بتائیے کہ آپ کس مسئلے پہ بحث کرنا چاہتے ہیں, آپ کس مسئلے پہ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ خلافت کے مسئلے پہ بحث کرنا چاہتا ہوں, میں خلافت کے مسئلے پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. تو ابو دجانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خلافت کے مسئلے پہ بحث کریے, لیکن پہلے جو ہے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. کہنے جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے, تو جو تخت خلافت پہ پہلی بار جو بیٹھا تو اس نے اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تم لوگوں سے افضل نہیں ہوں, لیکن پھر بھی اس تخت پہ بیٹھا ہوں. میں تم لوگوں سے افضل نہیں ہوں, پھر بھی اس تخت پہ بیٹھا ہوں. کبھی کبھی مجھ پہ شیطان میرے غالب ہو جاتا ہے, اور اگر میرے پر کبھی ایسا سلوک آ جائے تو تم لوگ مجھے صحیح راستے پہ لے آنا. تو پہلی چیز تو انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں سے افضل نہیں ہوں. جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ اپنے نیچے بیٹھنے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں سے افضل نہیں ہوں, تو پھر وہ علی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز انہوں نے دجانہ نے پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ جو خلیفہ اول نے یہ بات کہی تو یہ سچ کہا کہ جھوٹ کہا. انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تم لوگوں سے افضل نہیں ہوں, تو یہ سچ کہا کہ جھوٹ کہا. اب وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ پھنس گیا, اب وہ چپ ہو گیا. تو ابو دجانہ نے کہا کہ میں تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کے صرف 2 ہی راستے نکلتے ہیں. اگر انہوں نے سچ کہا تو خلیفہ نہ رہے, اور اگر جھوٹ کہا تو صدیق نہ رہے. جس کے پاس معرفت امام ہوتی ہے, بہلول دانا کا زمانہ ہے, ایک صاحب جو ہے وہ بہلول دانا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک طرف پوری امت کے اعمال لگ دیے جائیں, ایک پلے پہ پوری امت کے اعمال لگ دیے جائیں, اور ایک پلے پہ صرف ان کے اعمال لگ دیے جائیں خلیفہ اول کے, تو جو خلیفہ اول کا جو پلہ ہے وہ بہت بھاری ہو جائے گا, اور امت کا اعمال جو ہے وہ ہلکے ہو جائے گا. اب بہلول دانا جیسا ذہین آدمی انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں بھیا اس کے تو صرف 2 ہی جواب ہیں, یا تو حدیث میں کچھ گڑبڑ ہے یا پھر ترازو میں کچھ گڑبڑ ہے. صلوات پڑھیں آپ. تو یہ ہوتی ہے بات. دیکھیے اللہ نے ہم انسان کو جو ہے وہ مخلوق پیدا کیا. کون سی مخلوق بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے تو وہ کس لیے بنایا ہے؟ کیا ہم صرف گدھے, گھوڑے, ہاتھی, سانڈ, یہی سب
अशरफ मखलूक़ात अल्लाह ने जब हमको बनाया तो किस लिए बनाया? सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हम इनसे अफजल हैं। नहीं भैया, अल्लाह की पूरी खिलकत से में जो है वो इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाता है पूरी खिलकत में। अब अल्लाह की खिलकत में क्या क्या चीज़ें आप जोड़िए। अल्लाह की खिलकत में इंसान भी है, अल्लाह की खिलकत में हैवानात भी हैं, अल्लाह की खिलकत में जो है वो शैतान भी हैं, अल्लाह की खिलकत में जो है वो नबी भी हैं, अल्लाह की खिलकत में जो है फरिश्ते भी हैं, अल्लाह की खिलकत में जो मलाइका भी हैं, अल्लाह की खिलकत में पहाड़ों की पलंदी भी है, अल्लाह की खिलकत में दरियाओं की रवानी भी है, अल्लाह की खिलकत में सूरज की रोशनी भी है, अल्लाह की खिलकत में चाँद में चांदनी भी है, अल्लाह की खिलकत में सितारों की रोशनी भी है, अल्लाह की खिलकत में आसमान में ऊंचाई भी है, अल्लाह की खिलकत में ज़मीन की खूबसूरत भी है, अल्लाह की खिलकत में बशीर भी है, नज़ीर भी है, साहिब औलाद भी है, नूर अव्वल भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, मौला कायनात भी है, सब कुछ है। सब कुछ अल्लाह की खिलकत में, जितना भी दायरा है सब कुछ अल्लाह की खिलकत में है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात कैसे है बताइए? कि हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं दिखे आपको जो अशरफुल मखलूक़ात है? हम लोगों में से कोई, हम लोग को नमाज़ी पढ़ने यही क्या काम है? पढ़ते हैं, लेकिन जैसी पढ़नी चाहिए तो वैसे नहीं पढ़ते हैं। अगर कहीं से वाक़ई निदा आ जाए कि आज से नमाज जो है वो मुस्तहब है, तो कितने लोग तो लब्बाइक कहते हुए नजर आएंगे। क्या कहने भाई बाबा आज का किस लिए कहा गया? देखिए, हम लोगों में से तो कोई ऐसा नहीं है, तो आप इसको साबित करने के लिए अल्लाह को कुछ इंसान तो ऐसे बनाने थे कि जिससे ये साबित हो जाए कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। तो कैसे है? तो अल्लाह ने को कुछ इंसान ऐसे बनाए जिनके घर में फरिश्ते नौकरी करने आ रहे हैं, क्या कहने भाई बाबा? दर पे आ रहे हैं, तक मिस्कीन यतीम और असीर बन के आ रहे हैं, या लेके जा रहे हैं। ये है वो इंसान। क्या कहने भाई बाबा? हम जैसे इंसानों को थोड़ी ना है। तो जो मारिफत इमाम रखता है उसके लिए देखिए, मुन्ना भाई ने थोड़ा जो है वो फरमाइश करी है, तो उसको दिलाने के लिए बात को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। इमाम हुसैन जब करबला से के लिए जब मदीने से जब करबला के लिए चले हैं, तो दो शख्सियात जो थी वो इमाम हुसैन के पास ऐसी थी कि जिनका तसव्वुर जो है वो मतलब हल्का फुल्का आदमी तो कर ही नहीं सकता। एक उसमें जनाब मुस्लिम और एक जनाब अब्बास। जनाब मुस्लिम और जनाब अब्बास दो चीज़ें थी। जनाब अब्बास के बारे में देखिए ऐसा है, आप शब हिजरत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, ठीक है, मुख्तलिफ ज़ातियों से, मुख्तलिफ उलमाओं से, कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन शायद आप लोगों ने कभी इस रुख पर गौर न किया हो या आप लोगों ने सोचा नहीं। देखिए, शब हिजरत रसूलुल्लाह ने शब हिजरत करी, मौला कायनात को बिस्तर पर बिठाया, मौला कायनात को बिस्तर पर बिठाया, बिस्तर पर बिठा के क्या किया? तिजारत हो गई। कैसी तिजारत हुई? मर्ज़ी खुदा खरीद ली, अपना नफ्स दे दिया। देखिए, हर नबी ने कुरान में दुआ करी है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हर नबी ने दुआ करी है कुरान में। जनाब इब्राहीम ने दुआ करी, जनाब इस्माइल ने, तो मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाए। ठीक है, जनाब मूसा ने दुआ करी है कि मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे ताकि मैं मूसा से जंग कर सकूँ। ठीक है, इसी तरह रसूलुल्लाह ने शब हिजरत में जो है वो दुआ करी है। क्या दुआ करी है? कि मुझे सुल्तान और नासिर अता कर दे। सुल्तान मतलब कि अपनी तरफ से एक मददगार अता कर दे जो ताकतवर हो। देखिए, रसूलुल्लाह ने जो है वो मददगार मांगा था, मदद नहीं मांगी थी। इसमें बहुत फ़र्क है कि मुझे एक मददगार अता कर दे। ये भी कह सकते थे कि अपनी तरफ से मदद भेज दे या खुद मदद कर दे, ये नहीं कहा कि एक ताकतवर मददगार भेज दे। तो रसूलुल्लाह ने मौला कायनात के जरिए जो है वो मददगार मांगा है, अल्लाह से मदद नहीं मांगी है। इसी तरह देखिए, नबियों की जो दुआ है और इंसानों की दुआ में फ़र्क है। नबी जो दुआ करते हैं वो आखिरत के लिए करते हैं कि देखिए, दीन को बढ़ाने के लिए अगर बेटे की दुआ कर रहे हैं तो ये आखिरत की दुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो दुआ करते हैं वो दुनियावी दुआ है। कोई कर्ज में डूबा हुआ है, उसका कर्ज ना हो जाए, किसी के मकान नहीं है तो वो मकान की दुआ कर रहा है, तो औलाद की दुआ कर रहा है, तो ये दुनियावी दुआ है। लेकिन अगर अपने गुनाहों की तौबा कर रहा है तो वो आखिरत के लिए है। अपनी तौबा कर रहा है तो वो आखिरत के लिए है। अपने अमाल सही कर रहा है तो अपनी खबर के लिए। तो हमारी जो दुआ है वो दुनियावी भी है और दुनियावी भी है। लेकिन जो नबियों की जो दुआ है वो सिर्फ दुनियावी है, वो दुनियावी है ही नहीं। कोई बेटा मांग रहा है तो उम्मत के लिए मांग रहा है, कोई बेटा मांग रहा है तो नबूवत के लिए मांग रहा है, कोई बेटा मांग रहा है तो रिसालत के लिए मांग रहा है, कोई बेटा मांग रहा है तो तौहीद को आगे बढ़ाने के लिए मांग रहा है। इसी तरह से नबियों ने भी मांगी और इमामों ने भी दुआ मांगी है। लेकिन देखिए, उन्हीं जनाब इब्राहीम ने बेटा मांगा, नबी थे और बेटा मांगा। जनाब हारून के पास, मूसा के पास भाई थे लेकिन फिर भी हारून से मांगा। रसूलुल्लाह के पास मौलाए कायनात थे, फिर भी दुआ मांगी। लेकिन मौलाए कायनात के पास तो दो बेटे थे और फिर भी बेटे की दुआ कर रहे हैं। क्या कहने भाई बाबा बाबा? हसनैन जैसे बेटे और फिर भी मौला अब्बास की दुआ कर रहे हैं।
अब बात आइए शब हिजरत पे। शब हिजरत देखिए, शब हिजरत में हुआ क्या? शब हिजरत में मौलाए कायनात ने अपना नफ्स बेचा और मर्जी जो है खुदा खरीद ली। और जो ख्वाहिश की जो ख्वाहिश और या जो मर्जी ख्वाहिश या कोई तमन्ना उसका जो आप कहते हैं जरिया होता है, वो नफ्स से होता है। उसका जरिया क्या होता है? नफ्स होता है। हमारा नफ्स चाह रहा है कि हम ये खाएंगे तो हम खाते हैं, हमारे नफ्स ने चाहा कि हम ये करें तो हमने करा। नफ्स का ताल्लुक जो होता है वो ख्वाहिश से होता है, वो तमन्ना से होता है। और मौलाए कायनात तो अपना नफ्स बेच चुके, मौलाए कायनात तो अपना नफ्स बेच चुके। अब जो ये तमन्ना हो रही है तो ये किसकी तमन्ना है? ये अली की तमन्ना है कि अली या अल्लाह की मशीयत है? अब आप मुझे बताइए भाई, नफ्स तो बिक गया, मर्जी खुदा खरीद ली, और उसके बाद जो है अब्बास जैसे बेटी की तमन्ना कर रहे हैं, तो नफ्स तो था ही नहीं अली के पास। आप ये दुआ कर रहे हैं तो ये किसके लिए दुआ हो रही है? ये जो दुआ हो रही है किसके लिए? ये अब्बास के लिए दुआ हो रही है, मशीयत इलाही है, ये अली की दुआ नहीं है। तो करबला से लेकर और करबला से कूफा, कूफा से शाम या मदीने से जो भी सफ़र रहा, 2 चीज़ों का सफ़र रहा है। इसमें दो लोग जो थे वो इमाम हुसैन के पास ऐसे थे जिनके ऊपर इमाम हुसैन का पूरा भरोसा था। एक जनाब मुस्लिम और एक जनाब अब्बास। जनाब मुस्लिम को कूफा भेजा, जनाब मुस्लिम को कूफा भेजा, लेकिन ये कह के नहीं भेजा कि तुमको वहाँ क्या करना है। ये नहीं कहा कि बैयत लेनी है तो कैसे लेनी है, ये नहीं कहा कि जंग करनी है तो कैसे करनी है, ये नहीं कहा कि तलवार उठानी है तो कैसे उठानी है, ये नहीं बताया कि अगर क़याम करना है तो कैसे करना है। इतना भरोसा रखना है। और एक जनाब अब्बास तो आशूरा जब उधर से लश्कर आया है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को भेजा कि जल्दी आप बात करिए। तो ये कहते हैं भेजा था कि क्या बात करनी है या क्या कहना है, इतना भरोसा रखते हैं इमाम हुसैन जनाब अब्बास के। अगर आप जनाब अब्बास की ज़िंदगी उठा के देखिए तो आपको इमाम हुसैन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं है। सोते बैठते उठते जाते हर जगह जनाब अब्बास। अगर आप मुख्तसर से इसको ऐसे देखिए कि अगर हुसैन की ज़िंदगी के को अगर कोई नाम देना चाहे तो उसे अब्बास नाम दे सकते, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए सिरसी मौलाना सिद्दीक़ सिरसी साहब ने अपनी किताब लिखी है बाबुल हवाइज। उसमें उन्होंने कई चीज़ें लिखी, लेकिन उसमें उन्होंने पहले एक चीज़ लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब अब्बास के बारे में जितनी भी किताबें अभी तक लिखी जा चुकी हैं उसमें सारे फ़ज़ाइल मेरे हिसाब से लिखे जा चुके हैं। और मेरे लिए मतलब मेरे इल्म में ऐसा कोई फ़ज़ाइल नहीं है जो पहले की किताबों में ना लिखा गया, जो पहले की किताबों में ना लिखा गया हो। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात लिखी कि देखिए जनाब अब्बास होते थे जिनको इमाम हुसैन की पूरी मालूमात थी, जिनको इमाम हुसैन की मर्ज़ी का पूरा अख्तियार था। उनको पता था कि करबला में क्या होना है, उनको पता था कि वलीद के दरबार में क्या होना है, उनको पता था कि कूफे में मुस्लिम के साथ क्या होना, सब उनको पता था जनाब अब्बास को। और उनको ये भी पता था कि मुझे तलवार नहीं मिलेगी, उनको ये भी पता था कि मुझे जंग करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वलीद के दरबार में जो तलवार उठा रहे हैं तो वो किस लिए उठा रहे हैं? वलीद के दरबार उनको पता था कि मुझे रोक दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तलवार उठा रहे हैं। जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर सुनी है और जंग की इजाज़त मांगी है, लेकिन इमाम हुसैन ने मना कर दिया। उनको पता था कि मुझे जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इजाज़त मांग रहे हैं। करबला में जब पानी का सवाल उठा तो उनको पता था कि जो मुझे जंग नहीं करने दी जाएगी, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन से जो इजाज़त मांग रहे हैं। क्यों इजाज़त मांग रहे हैं? हर जगह पर इजाज़त मांग रहे हैं और मना किया जा रहा है, इजाज़त मांग रहे हैं और मना किया जा रहा है। क्यों? लेकिन जनाब अब्बास को इमाम हुसैन की एक लम्हे की जो है वो खबर थी, लेकिन फिर भी जो है वो इजाज़त मांग रहे हैं। क्यों इजाज़त मांग रहे हैं? सिद्दीक़ सिरसी साहब ने लिखा कि जनाब अब्बास ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरा इमाम जो है वो मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है। क्या कहने भाई, वाह। मजलूम है लेकिन मजबूर नहीं है, तो कोई हमारे इमाम को मजबूर ना समझे, कोई हमारे इमाम को मजबूर ना समझे। ये होती है मारिफत इमाम, ये होती है मारिफत इमाम। जिसको मारिफत इमाम हासिल हो गया उसको सब हासिल हो गया। यही जनाब अब्बास एक मुन्ना भाई ने जो है वो फरमाइश करी है बीबी सकीना की मसाइल। क्योंकि जब भी जनाब सकीना की बात आती है ना, रोज़े आशूर तक सकीना थी, रोज़े आशूर तक सकीना जो है वो सकीना थी। लेकिन रोज़े आशूर के बाद सकीना को किसी ने सकीना नहीं कहा, या तो कैदी का है या यतीमा का है, ये समझ लीजिए, या तो यतीमा का है या कैदी का। एक साल में जनाब सकीना का किसी ने नाम नहीं, एक साल, 3 साल से लेकर 4 साल तक। करबला में जनाब सकीना 3 साल की थी, तो कैद शाम में जब शहादत पाई है तो 4 साल की। तो 1 साल के दरमियान सकीना ने अपना नाम नहीं सुना, या तो यतीमा कहा गया है या कैदी। वो मजलूम बच्ची
कि जिसने पानी मांगा तो तमाचे मांगे। देखिए ये तो लिखा गया किताबों में कि सकीना के गोशवारे छीने, लेकिन ये नहीं लिखा किसी ने कि कैसे छीने, ये नहीं लिखा किसी ने। आपको पता है कैसे छीने? उलमाओं ने बताया है कि जो गोशवारे जो छीने गए वो उतारे नहीं गए, वो खींचे गए। तो कानों की लबें जो है वो फट गई हैं, कानों की लबें तक फट गई हैं जनाब सकीना की। ये वो सकीना है जो अपने बाबा के सीने पे अगर ना लेटती थी तो उसको नींद नहीं आती। जब भी कोई गया है वो यही कह के गया कि सकीना मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊंगा। इसीलिए जब आखिर में इमाम हुसैन जब वक्त रुखसत के लिए आए हैं तो इमाम हुसैन ने कहा था कि बीबी हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूं, तो जनाब सकीना ने तड़प कहा था कि बाबा ये कह के मत जाइए, क्योंकि जो भी गया है वो यही कह के गया और वापस नहीं आया। चचा अब्बास भी यही कह के गए थे और वापस नहीं आए। वो मजलूम बची है जिसकी मतलब कोई हद नहीं है। जब ये काफिला करबला से कूफे की तरफ गया है तो जनाब सकीना को अकेले मेहार पे बिठाया गया, एक अकेले ऊँट पे बिठाया गया और उस ऊँट को सबसे पीछे रखा गया था। उस ऊँट को सबसे पीछे रखा गया था, सब लोग आगे हैं लेकिन उस ऊँट को पीछे रखा गया। और जब जनाब सकीना जब रोती थी तो जिसके हाथ में मेहार रखा था वो ताजियाने मारता था, ए लड़की चुप हो जा, मेरे रास्ता चलने में जो है वो खलल पैदा होता है। तो इतना ताजियाना मारा है, इतना ताजियाना मारा है कि बीवी कभी कभी ऊँट पर बेहोश हो जाती थी। और नाके पे नहीं बिठाया गया है, ऊँट की पीठ पे रस्सी बांध के बिठाया गया है। आपको मतलब है ऊँट की पीठ पे रस्सी बांध के बिठाने का मतलब क्या होता है कि जब जब ऊँट चलता है उसकी पीठ ऊपर नीचे होती थी तो उससे रस्सी खींचती थी, और जब रस्सी खींचती थी उससे बीवी की बदन पर जो रस्सियों के निशान आ जाते थे। ये है बीवी सकीना। जब बीवी सकीना जब ऊँट से गिरी है और जब यहाँ जब पूरा काफिला आगे बढ़ गया तो एक यहाँ पे जनाब मौला हुसैन का जिस नेज़े पे सर था वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। शिम्र जो है वो ताजियाने मार रहा था लेकिन फिर भी नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। शिम्र जो है वो चौथे इमाम के पास आया कि ये बताओ कि तुम्हारे बाबा का सर जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। सैयद सज्जाद जो है वो अपने बाबा के पास आए, ए बाबा अब और ताजियाने खाने की हिम्मत नहीं है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। कटे हुए सर की आवाज आई, ए सैयद सज्जाद मेरी बेटी सकीना पीछे रह गई है। जब जनाब ज़ैनब जनाब कुलसूम गई है बच्ची को ढूंढने के लिए तो क्या देखा, एक पर्दा नशीन बेबी सकीना को गोद में लिए बैठी हुई है। जनाब ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिया, होता है बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यतीम बच्ची के सर पे हाथ फेरा, क्योंकि जब से ये बच्ची यतीम हुई है किसी ने इसके सर के ऊपर प्यार से हाथ नहीं फेरा। लेकिन ये तो बता दीजिए बीबी आप कौन है। आने वाली ने अपना नकाब उल्टा, ऐ बेटी ज़ैनब मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये है बीबी सकीना। जब भी किसी परिंदों को घर जाते हुए देखा है तो बीबी सकीना ने अपने भाई से एक ही सवाल किया है, ए भाई ये परिंदे शाम को कहाँ जाते हैं। तो हमेशा सैयद सज्जाद कहते थे ये परिंदे अपने घर जा रहे हैं। बीबी तड़प के कह देती थी, ए भाई हमको कब मदीना जाना नसीब होगा, ये बताइए। जनाब ज़ैनब देखिए एक बात आप लोगों को एक बस 1 मिनट और आप लोग की जो है वो सहमत तमाम हो जाएगी। देखिए अगर जनाब अली असगर होते या ना होते लेकिन करबला होती, जनाब अली अकबर होते या ना होते लेकिन करबला होती, ठीक है, जनाब अब्बास होते या ना होते करबला होती, लेकिन अगर ज़ैनब ना होती तो करबला ज़ैनब ना होती तो करबला ना होती। अली अकबर को किसने पाला, ज़ैनब ने पाला। और मोहम्मद को किसने पाला, ज़ैनब ने पाला। कासिम को 3 साल यतीमी के बाद किसने पाला, ज़ैनब ने पाला। सबको अली असगर को किसने 6 महीने तक गोदी में खिलाया, ज़ैनब ने खिलाया। यानी कि मतलब ये कि ज़ैनब ने पूरी करबला पाल के इमाम हुसैन को दे दी, पूरी करबला पाल के हुसैन को दे दी। और करबला से लेके कूफा और कूफा से लेके शाम तक एक एक लाशें ज़ैनब ने देखे, जिनको अपनी गोदियों में पाला है उन सब के लाशें देखे। और सबसे आखिरी जो उसने लाश देखी है जनाब ज़ैनब ने वो कैद खाने में जनाब सकीना की देखी है। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, गले में तौब और 3 साल की यतीमा, 3 साल की यतीमा कभी भाई की गोदी में और कभी जो है वो फूफी की गोदी में और कभी उम्मे कुलसूम की गोदी में और कभी अपनी माँ की गोदी में, लेकिन बेटी को कहीं पे चैन नहीं मिलता था। एक दिन ज़ैनब की ज़ानू पर जो है वो जनाब सकीना सो रही थी, एकदम से घबरा के उठी,
घबरा के उठी। ज़ैनब ने पूछा बीबी क्या हुआ? ऐ बूढ़ी अम्मा, मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है। रोने की आवाज बुलंद हुई। दरबान आया, कहने क्या बात है? अब बच्ची ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है, अगर हो सके तो बाप का सर थोड़ी देर के लिए मंगवा दो। यजीद को बुलाया गया, यजीद से इजाजत दी गई। सरे हुसैन जो है वो सकीना के पास आया, तश्त में कपड़े से ढका हुआ सर आया। जैसे ही सकीना ने सर कपड़ा हटाया, कटे हुए गर्दन से आवाज आई, सकीना इलाइया इलाइया, सकीना इलाइया इलाइया। बेटी ने बाप को देखकर, बेटी बाप को देख के तड़प गई, अपने रुखसार इमाम हुसैन के रुखसार में रख दिए। ऐ बाबा, जब से आप दुनिया से गए हैं मुझे तमाचे मारे जा रहे हैं, मुझे रोने नहीं दिया जा रहा है। पानी मांगती हूँ तो मुझे ताजियाने मारे जाते हैं। मरने वाले जो मखलूक हैं उनको खर्च अदा कर दे, मरने वाले जो बेऔलाद हैं उनको औलाद अदा कर, मरने वाले आफतों का बयान अल्लाह की ज़रा से महसूस कर, मरने वाले इमामों की ज़माना की दूर में तहलील कर, मरने वाले इंसान याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में वो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही, तुम भी तो न आए, मैं बन गई बादस लई का निशाना, प्यासी है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखा है मेरी जिंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आता, करते हुए तशहीर चले जानिब कूफा, और उस पे मुसीबत ये थी बद मेरा तछोड़ा, जब उठती थी कुपिया तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरी जख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। जिस रोज से असगर को मिला बाबा का सीना,
हाल में जीऊंगी मैं किस तरह मदीना आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना सभा जाके अम्मू को बताना प्यासी है सकीना सभा जाके अम्मू को बताना प्यासी है सकीना रोके रही कहने लगी
बाबा शाम हुई आइए बाबा बाबा देखो मुझको सताते हैं आदा बाबा देखो मुझको सताते हैं आगा मार कर तमाचे रुलाते हैं आदा मार कर तमाचे रुलाते हैं आगा माशाअल्लाह कहने लगी वाली सकीना शाम हुई आइए बाबा शाम हुई आइए बाबा बाबा मर न जाए ये तेरी सकीना बाबा मर न जाए ये तेरी सकीना सोए किसके सीने पे तेरी सकीना सोए किसके सीने पे तेरी सकीना रो के रही कहने लगी वाली सकीना शाम हुई आइए बाबा शाम हुई आइए बाबा शाम हुई आइए बाबा अरे नहीं आ पढ़ाएंगे सलाम अलैका या अब्दुल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम अलैका या करीबुल क़रबा अस्सलाम अलैका या मुनज़्ज़फ़ व तुक़रा